بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ، دو فریقین، اس میں ایک طرف صوبائی حکومت ہے، دوسری طرف ایک عام بندہ ہے۔ ایک رقبہ ہے جس پہ دونوں کا کلیم ہے۔ حکومت کلیم کر رہی ہے یہ رقبہ حکومت کا ہے، اور پرائیویٹ بندہ کلیم کرتا ہے کہ یہ رقبہ اس کا ہے۔ اب سٹوری کیا ہے اس کیس کی، تو پہلے اس طرف آتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ 1986 میں ایک علاقے میں پہلی بار سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، یعنی فرسٹ ٹائم ریکارڈ بنایا جا رہا ہے محکمہ مال کا۔ اس سے پہلے ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور جب ریکارڈ بنایا گیا تو ایک مخصوص رقبے کا ذکر نہیں ہے کہ کتنا ہے، کون سی کھیوٹ، کون سا خسرہ، کچھ بھی نہیں، بس ایک مخصوص رقبہ وہ حکومت نے، ریکارڈ بھی ظاہر حکومت ہی تیار کرتی ہے، تو وہ رقبہ حکومت کے نام کر دیا گیا۔ ایک پرائیویٹ بندہ وہ عدالت میں آ گیا، اس نے کہا یہ رقبہ میرا ہے، میں اس کو کاشت کر رہا ہوں، جب سے بھی کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرے زیر کاشت یہ رقبہ ہے، اس کا میں ہی مالک ہوں، یہ پراپرٹی میرے نام ہونی چاہیے، نہ کہ حکومت کے۔ یہ جو میں نے ریڈ لائن کی ہے، ہائی لائٹ، اس میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے۔ اب کیس چلتے چلتے سپریم کورٹ تک پہنچ گیا۔ جب وہ پہلے عدالت میں ہوا تو وہ پرائیویٹ بندے کے حق میں فیصلہ گیا، اپیل ہوئی تو گورنمنٹ کے حق میں ہو گیا فیصلہ، ہائی کورٹ نے دوبارہ پرائیویٹ بندے کے حق میں فیصلہ دیا۔ اب کیس پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں، اور یہ اپیل کس نے کی ہے؟ حکومت نے۔ اب سپریم کورٹ اس میں کہتی ہے the government started first settlement proceeding in the area which were completed in the year 1986۔ 1986 میں پہلی بار ریکارڈ گورنمنٹ نے مرتب کیا ہے، where in the land in question was recorded in the name of government، اور گورنمنٹ کے نام یہ رقبہ کر دیا گیا ہے۔ perusal of record would reveal that there is no evidence to prove that before the settlement proceeding the government was either owner or in possession of the disputed land, nor is there any reason in doing so۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ ریکارڈ میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا اس پراپرٹی پہ قبضہ تھا یا گورنمنٹ اس پراپرٹی کی مالک تھی۔ اس بندوبست سے پہلے، بندوبست کہتے ہیں جب پہلی بار ریکارڈ بنایا جاتا ہے، تو بندوبست سے پہلے 1986 سے قبل کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ مخصوص رقبہ گورنمنٹ کے قبضے میں تھا یا گورنمنٹ کے نام تھا۔ آگے بات ہو رہی ہے the respondent produce oral evidence to establish his ownership and possession as the land had no record before the settlement proceeding, therefore there was no possibility of producing documentary proof۔ اب اس میں عدالت کہہ رہی ہے کہ اس کے برعکس جو پرائیویٹ بندہ ہے اس نے پھر بھی ثبوت دیے ہیں۔ کون سے ثبوت؟ کہ اس نے گواہ پیش کیے ہیں جو آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رقبہ اسی بندے کے قبضے میں تھا، اور یہی پرائیویٹ بندہ اس کو کاشت کر رہا تھا۔ مزید اس پہ عدالت نے کہا کہ اب وہ کوئی کاغذات تو دے نہیں سکتا تھا۔ کاغذات اس لیے نہیں دے سکتا تھا کہ کاغذات کا وجود ہی نہیں تھا۔ پہلی بار ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے تو کاغذات اس لیے اس کے پاس کسی طرح کے موجود نہیں تھے۔ فردر عدالت یہ کہہ رہی ہے a local commissioner was appointed، یعنی ایک لوکل کمیشن مقرر کیا گیا موقع پہ جانے کے لیے عدالت کی طرف سے، who also confirmed the possession of respondent، اور اس نے بھی آ کے یہی بتایا کہ جو پرائیویٹ بندہ ہے اس کے قبضے میں یہ رقبہ تھا۔ اس نے اپنی انویسٹیگیشن کی اور رپورٹ دی عدالت کو۔ It is a fact that some of the adjacent properties belonging to several persons have been recorded in their names during the settlement proceedings, but the government did not dispute their ownership nor objected the settlement proceeding to their extent۔ مزید عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اس رقبے کے ساتھ ملحقہ جو دیگر رقبہ جات ہیں وہ بھی پرائیویٹ لوگوں کے نام کیے گئے ہیں، اور ثبوت تو ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ یعنی جو دیگر پرائیویٹ لوگوں کو رقبے دیے گئے ہیں ان کے پاس بھی کوئی تحریری ثبوت نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کو دے دیے گئے۔ انویسٹیگیشن گورنمنٹ نے کی جس بھی انداز سے کی، اور اس کے بعد ان کو مالک ڈکلیئر کر دیا۔ تو پھر اس رقبے پہ ایسا کیا ایشو تھا کہ اس بندے کو مالک نہیں بنایا گیا؟ مزید اس پہ عدالت کہتی ہے اٹ از اے سیٹلڈ پرنسپل آف لا دیٹ ان کیس آف کلیم آف اونرشپ آف پراپرٹی the government is equally responsible to show
that the property has either been acquired through due process of law or it has become its owner in respect of property. अब इसमें अदालत कह रही है कि जब गवर्नमेंट क्लेम करती है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, गवर्नमेंट कहती है या हुकूमत कहती है ये रकबा हमारा है, तो गवर्नमेंट ने भी उसी तरह साबित करना है जिस तरह प्राइवेट बंदे ने साबित करनी होती है अपनी मलकियत, तो गवर्नमेंट पे भी लाजम है कि उसी तरह से अपनी मलकियत साबित करे। अगर नहीं करेगी तो गवर्नमेंट को रकबा नहीं मिलेगा। मज़ीद इसमें ये बात हो रही है विच हैज़ नो rightful owner as provided by Article 172 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan। इसमें मज़ीद ये बात हो रही है कि जब कोई ऐसा रकबा हो जिसका कोई भी मालिक नहीं है या मालिक था वो फोत हो गया, आगे उसका कोई भी वारिस नहीं है, अनक्लेम्ड रकबा है, वो भी अगर गवर्नमेंट के पास जाएगा तो उसका एक पूरा तरीक़ाकार है जो आइन में दिया गया है। और वो क्या तरीक़ाकार है? अंडर द सेड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू टेक ओनरशिप ऑफ एन अनक्लेम्ड और ओनरलेस प्रॉपर्टी, यानी कोई भी ऐसी जायदाद जिसका कोई मालिक नहीं है या जिसका कोई वारिस नहीं है, अगर मालिक था तो उसका आगे कोई वारिस नहीं, तो वो गवर्नमेंट ले सकती है। लेकिन वो कैसे लेगी? इट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल डाइज और डिसअपीयर विद नो विल एंड नो लीगल हेयर and his property remains unclaimed for a considerably prolonged period of time, यानी कोई मालिक काफ़ी देर तक सामने नहीं आया अगर किसी प्रॉपर्टी का। इट रेफर्स टू अ राइट ऑफ एस्टीट, इसका एक मखसूस नाम है कि एस्टीट, उसका मतलब है कि जब गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करती है, किस सूरत में कि उसका कोई मालिक नहीं है। बिफोर एक्वायरिंग सच अनक्लेम्ड और ओनरलेस प्रॉपर्टी through the right of escheat, the government is required to follow the procedure provided by law and to invite objections from general public through widely circulated notice through all medium of communication। यानी अगर कोई रकबा ऐसा होगा गवर्नमेंट उसको अपने नाम करेगी, अपनी पोजेशन में लेगी, तो उससे पहले नोटिस जारी करेगी पब्लिक को, तमाम अवेलेबल जो सोर्सेज हैं कम्युनिकेशन के, उसके ज़रिए बताया जाएगा, मसलन अखबार में इश्तिहार दिया जाएगा कि फ़लाँ रकबा वो गवर्नमेंट अपने नाम करने जा रही है, या उसका अगर कोई मालिक है तो वो आ जाए, क्लेम करे, किसी का ऑब्जेक्शन है आके ऑब्जेक्शन रेज़ करे, जो भी टाइम दिया जाएगा उसके अंदर अंदर अगर कोई सामने नहीं आता तो फिर वो रकबा गवर्नमेंट के पास जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर कोई इस तरह की प्रॉपर्टी पड़ी है अनक्लेम्ड, उसका कोई ओनर नहीं है और स्ट्रेट अवे वो गवर्नमेंट के नाम लग जाए और उसके लिए कोई प्रोसीजर फॉलो ना किया जाए, ये नहीं हो सकता। आगे जनाब बात हो रही है, सिंस द रिस्पोंडेंट इज क्लेमिंग टू बी इट्स राइटफुल ओनर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ड्यूरिंग द सेटलमेंट प्रोसीडिंग ऑफ द ईयर 1986 and also proved his possession over the land in question, therefore his claim was superior than that of the government। अब इसमें ये बात हो रही है कि वो शख्स जो प्राइवेट बंदा है वो क्लेम भी कर रहा है कि ये रकबा मेरा है और उसने सबूत भी दिए हैं, यानी गवाह भी पेश किए हैं और लोकल कमिश्नर ने भी उसके हक में रिपोर्ट दी है। इससे उसका राइट वो सुपीरियर नज़र आ रहा है गवर्नमेंट की निस्बत, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं अदालत को बता सकी कि हम इस प्रॉपर्टी के मालिक क्यों हैं। आगे बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड द सेटलमेंट मैनुअल्स, it is the responsibility of the provincial government to conduct a periodical land settlement proceedings in respective provinces, but unfortunately the needful was not done। अब इस पे अदालत कह रही है कि कानून के मुताबिक हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ज़मीनों का रिकॉर्ड मुरतब किया जाए, और यहाँ ये गवर्नमेंट फेल हो गई है, यानी 1986 में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पंजाब में 1860 से, यानी इस सेटलमेंट जो भी 1986 में हुई, इससे तकरीबन 125 साल पहले रिकॉर्ड मुरतब कर दिया गया था मोस्टली एरियाज़ का, कुछ का बाद में हुआ लेकिन 1860 से ये अमल शुरू था सही मानों में। तो इस पे अदालत कह रही है कि ये गवर्नमेंट का कसूर है कि अगर रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया गया। अंडर सच सर्कमस्टांसिस द लैंड ओनर्स कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग नो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। अब इस वजह से प्राइवेट बंदे को नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारे पास कोई कागजात नहीं है, वो किधर से लाए जब कागजात थे ही नहीं। इट वॉज द गवर्नमेंट दैट निगलेक्टेड इट्स ड्यूटी to conduct settlement proceedings to incorporate title
and ownership in the regard of rights. Therefore, the rightful owner could not be deprived of their fundamental rights to acquire, hold, and dispose of property in any part of Pakistan as enshrined in Article 23 and 24 of the Constitution. अब इसमें मज़ीद वही बात हो रही है कि ये गवर्नमेंट ने की नाअहली है और उनकी सुस्ती है कि रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया गया और इसकी सज़ा किसी प्राइवेट बंदे को नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि हमारा आइन ये कहता है कि हर बंदे का ये हक़ है कि वो ज़मीन ले, उसको यूज़ करे, उसको सेल करे, और ये आर्टिकल 23 और 24 कॉन्स्टिट्यूशन का ये बात करता है। मज़ीद ये कहा गया, एडमिटेडली द लैंड वाज अनसेटल्ड, ये तस्लीम शुदा बात है कि इस प्रॉपर्टी का पहले रिकॉर्ड नहीं था, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, एंड इफ़ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वाज टू बी कंसिडर्ड एज द ओनली वे टू प्रूव ओनरशिप ऑफ द लैंड देन द प्रिंसिपल अप्लाइज टू द गवर्नमेंट एज वेल। इस पे अदालत कह रही है अगर ये मान लिया जाए कि कागजात ही सबूत हैं मलकियत का, तो फिर गवर्नमेंट ने भी कागजात दिखाने थे और उनके पास भी कोई कागजात नहीं है अपनी मलकियत साबित करने के लिए। The government was bound to prove its ownership with regard to the property in question, but it did not produce any evidence to establish its ownership. गवर्नमेंट की भी ड्यूटी थी कागजात दिखाए, उसने नहीं दिखाए। इसमें यह बात भी सामने आती है कि कहीं भी अगर लोगों का इस तरह का केस है गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट पे भी वही रूल्स और कानून अप्लाई होते हैं कि उन्होंने भी सबूत दिखाने हैं अपनी मलकियत के। अगर गवर्नमेंट नहीं दिखा सकती, इसमें बहुत से इश्यूज मौजूद हैं, जैसे जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया चले गए उनकी जगहें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई। अब अक्सर लोगों के डिस्प्यूट्स चलते रहे हैं, माजी में तो बहुत ज़्यादा थे, जब प्राइवेट बंदों के लोगों के साथ गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट होता था उस अवैक्यू प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उस हवाले से भी फिर यही रूल उधर फिट बैठता है कि गवर्नमेंट ने भी अगर कोई अपनी पोजेशन में प्रॉपर्टी ली हुई है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम है, तो अगर वो चैलेंज होगी तो उन्होंने सबूत दिखाने हैं कि कैसे उन तक ये पहुंची। एज देयर वाज नो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ व्हाटसोएवर ऑफ द अनसेटल्ड लैंड, देयरफॉर possession and the control of the respondent over the land is sufficient proof of ownership, but admittedly the government was neither in possession of the property nor the same was under the control or supervision. अब इस पे कहा जा रहा है कि क्योंकि कोई सबूत नहीं था, कागजात नहीं थे, लिहाजा कब्ज़ा ही टोटल सबूत था फिर मलकियत का, और वो कब्ज़ा किसका था? वो प्राइवेट बंदे का था, गवर्नमेंट का किसी तरह का कंट्रोल इस लैंड के ऊपर नहीं था। ये सारा कुछ बयान करके तो अदालत ने कहा कि ये प्रॉपर्टी उस प्राइवेट बंदे की है और गवर्नमेंट का कोई इस पर राइट नहीं है। अब ये मैंने इसलिए इधर शेयर किया कि काफ़ी से लोग केपी से मालाकंड डिवीजन है गालबन, जिससे ज़्यादातर ये सवाल पूछे गए हैं कि वहाँ अब हो रही है सेटलमेंट फ़र्स्ट टाइम। इसी तरह वज़ीरिस्तान, ये जो अब फाटा को मर्ज किया गया है, वहाँ भी सेटलमेंट फ़र्स्ट टाइम हो रही है। वहाँ से भी कुछ सवालात इस हवाले से पूछे गए कि लोग कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमने कैसे इस अपनी बात को प्रूव करना है अदालत में कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो उनके लिए ये जजमेंट जो मैंने यहाँ बयान की ये हेल्पफुल हो सकती है भी ये केपी की, और ये है भी इसी मकसद के लिए है कि जब पहली बार सेटलमेंट हुई उस वक़्त जो क्लेम था प्राइवेट बंदे का, तो उसको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हल किया।